हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन। नेम ऑफ द लेसन इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इट इज अ स्मॉल पोएम। नेम ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। It is written by Rabindranath Tagore. I hope everybody knows who was Rabindranath Tagore. Yes, he had written our national anthem Jana Gana Mana. सबको पता होगा जन गण मन, तो it is written by Rabindranath Tagore. If you know, let us learn little bit about Rabindranath Tagore before we move to the poem. He was author of Gitanjali. Do you know what is Gitanjali? It is a Nobel Prize winning anthology. It was by Rabindranath Tagore. What is anthology? Is actually collection of poems, you can say, or songs. For that actually Rabindranath Tagore was given Nobel Prize. तो उसमें से गीतांजलि जो इसका बुक है उसमें से ये पोएम ली गई है, Where the Mind is Without Fear. He won Nobel Prize in Literature in 1913. ऑल्सो ही लिव्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब इंडिया पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे ना, तभी रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलो, लेट अस नो व्हाट इज द पोएम अबाउट। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। दिस पोएम एक्चुअली इनिशियली दिस पोएम वाज रिटन इन बंगाली। Later you know Rabindranath Tagore was Bengali. He had written this poem in Bengali, but later he himself translated this poem into English. This poem actually is written in the form of prayer to God. He has done prayer to God in which he has asked for freedom for the country. क्योंकि इंडिया जो था ब्रिटिशर्स के रूल में था, उनके अंडर में था, तो he had written this poem during that time in which he is asking God, he is praying God for the freedom of our country. So let's see what is the content of poem. Where the mind is without fear, जहाँ पे बिल्कुल बिना फियर के लोग रहे। I already told you about Rabindranath Tagore. He lived from 1861 to 1941. It's a small poem. Let's read the poem and understand what exactly the poet wants to, Rabindranath Tagore ji wants to give. Where the mind is without fear and the head is held high. अभी he is telling we should live in a country. He is praying God कि हमारी जो इंडिया हो वो फ्री हो जाए ब्रिटिशर से, और ऐसा हो कि जहाँ पे हमारा जो माइंड है इट शुड बी फ्री फ्रॉम फियर। अभी जब भी किसी को फियर होता है तो उसका हेड डाउन हो जाता है। सो ही इज टेलिंग द माइंड इज विदाउट फियर। ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ पे लोगों का माइंड विदाउट फियर है and the head is held high, so that they are able to hold their head high. Okay, he is telling where knowledge is free, यानी यहाँ पे ऐसा कंट्री, he is asking for such a country where knowledge is free. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर है, गरीब है, फीस पे करनी है, पैसा भरना है तो ही पढ़ाई मिलेगी। नो, he feels like education, knowledge should be free to everyone. There should not be any differentiation between rich and old people. Where the world has not been broken up into fragments, fragments यानी small segments, small sections, by narrow domestic walls. Now see this line here. Poet यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि we want such a world which is not broken into small segments, into small section. He is praying God that we should have a world, not only our country but whole world, which should not be broken into small sections. What are those small sections? By narrow domestic wall. Narrow domestic wall means जहाँ पे division है on the basis of caste, creed, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उसके बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए। तो ही इज प्रेइंग गॉड कि ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट्स पे लोगों को डिवाइड नहीं किया जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख के ऊपर। ऐसी वर्ल्ड होनी चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। नाउ ही इज वांट्स द वर्ल्ड वेयर पीपल शुड ओनली स्पीक ट्रुथ, that truth should come from the
depth of their mind. People should be honest, they should speak truth. He is expecting to have such a world where tireless striving stretches its arm towards perfection. Now what do you mean by tireless striving stretches? Yani non-stop work, if hard work. He wants world where people should work their hard, they should try their best. For what? For perfection. He wants people to work very hard so that there is perfection, good work, good quality of work, where the clear stream of reason has not lost its way. Now he is comparing clear stream with logical thinking. He wants people to have logical thinking, यानी he is indirectly comparing with clear stream. Logical thinking होनी चाहिए लोगों के मन में. They should think good on basis of what? Into the dreary desert sand of dead habits. What do you mean by dead habits? जो बुरे customs, traditions जो भी हैं, पुराने सुपरस्टिशियस लोग जो सुपरस्टिशन पुराने रीति रिवाज को लेके बैठते रहते हैं, तो वो पुराने रीति रिवाज का ड्रेयरी यानी स्कैरी, डार्क, डेजर्ट नहीं होना चाहिए. नाउ वंस अगेन व्हाट इज पोएट वांट्स टू से? ही वांट्स टू सी पीपल थिंकिंग लॉजिकली. दे शुड थिंक लॉजिकल एंड दे शुड बी क्लियर फ्रॉम दी सुपरस्टिशंस, डेड बैड थिंकिंग, ओल्ड फैशंस. उससे सबसे क्लियर होना चाहिए. अभी आपको पता होगा कि ओल्डन डेज में था कि सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस, और लाइक दिस पीपल हैड सो मेनी सुपरस्टिशंस. तो ही वांट्स द वर्ल्ड वेयर दे शुड बी फ्री फ्रॉम सच बैड superstitions or dead thinking. They should have logical thinking, where the mind is led forward by thee. Thee means you. It is old English. Thee means you. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Now he wants people to have widening thinking, yani ever widening thinking, yani they should think broad, they should be generous, they should be open minded. Okay, they should have such a mind which should lead them forward for generosity or open mindedness. Into the heaven of freedom, my father, let my country awake. Now here poet is addressing God as my father. My father, please give me heaven of freedom. freedom दो कि जैसे वो heaven बन जाए, और ऐसी country में, ऐसी heaven में my country should awake. My country ऐसे country के people ऐसे जगह पे जग जाएं, आ जाएं जहाँ पे it is heaven of freedom, यहाँ पे कोई भी bad thinking, bad behavior, बैड कल्चर नहीं है. ऐसे हेवन में हमको लेके आओ. सो इन शॉर्ट, पोएट इज प्रेइंग गॉड फॉर इंडिया's freedom, but then he is praying not only for India, but he is praying for whole world. We should have a world which is free from dead habits, superstitions. People should raise their mind high. They should be free from any fear. They should have respect. They should learn knowledge which should be free. They should work very hard so that they attain perfection, and their mind should be broad, their thinking, their behavior, their culture should be very forward. This is what is conveyed by this poem. और एक क्वेश्चन जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है पोएम में से, वो है फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है. व्हाट इज एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच इज वे ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस विच इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ द पोएम. तो ऐसे स्टाइल में सेंटेंसेस लिखा रहता है जिसके वजह से पोएम की ब्यूटी बढ़ जाती है. तो अलग अलग तरह के फिगर ऑफ स्पीच रहते हैं. आपने 8th में 9th में भी पढ़ा होगा. अगर नहीं आप भूल गए हो तो मैं सेपरेट वीडियो डाल रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच के लिए, आप वो जरूर देख लीजिएगा. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम पोएम. जो एग्जाम में पोएम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच. अभी एक सेंटेंस देखिए हमने लिया है पोएम में से, ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड. कैन यू गेस व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड? यस, राइट, इट इज alliteration. Why alliteration? What is actually alliteration? Alliteration is nothing but when sound is repeated. अभी आप यहाँ पे देखोगे D sound.
dreary, desert, dead. Sound of D is repeated, so figure of speech is alliteration. बट कभी कभी एक सेंटेंस में दो फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकती है. सो इसमें एक और एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर. व्हाट इज मेटाफर? व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट एक्चुअली यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, यानी इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है. तो यहाँ पे ओल्ड हैबिट्स हैव बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद ड्रेयरी डेजर्ट्स. सो दिस कैन बी मेटाफर ऑल्सो. सो एग्जाम में अगर आप कोई भी एक लिखते हो, एलिट्रेशन लिखो या मेटाफर लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगी. कोई भी एक लिख सकते हो आप. देयर इज नो नीड दैट यू हैव टू राइट बोथ द फिगर ऑफ स्पीच. एनीवन इज ओके. सेकंड line if you see from the poem I have taken is where tireless striving stretches its arm towards perfection. Can you guess what figure of speech it is? Yes, it is personification. What is personification? When non-living thing has been given human quality. कोई भी non-living thing उसको human quality, जैसे human quality हंसना, रोना, खाना, ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है. सो फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. तो अभी क्या यहाँ पे दिया गया है? ह्यूमन क्वालिटी. कौन से नॉन ह्यूमन बीइंग को दिया हुआ है? हियर टायरलेस स्ट्राइविंग हैज बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग इट्स आर्म. जैसे लोग अपने आर्म स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, वैसे हार्ड वर्क टायरलेस स्ट्राइविंग को ये ह्यूमन क्वालिटी दी रही है कि वो अपने हाथ स्ट्रेच करके खड़ा है. सो व्हेन नॉन लिविंग बीइंग इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी, फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. अभी इसमें भी एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज किया हुआ है. क्या? एलिट्रेशन. ऊपर भी मैंने बताया एलिट्रेशन इज व्हाट? व्हेन साउंड इज रिपीटेड. तो यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हुआ है? एस साउंड. स्ट्राइविंग, स्ट्रेचेस, एस साउंड इज रिपीटेड. सो हियर फिगर ऑफ स्पीच कैन बी एलिट्रेशन. तो आपको एग्जाम में जो याद आता है वो आप लिख सकते हो. बट कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम पोएम. तो अगर एलिट्रेशन स्पेसिफिकली पूछा है तो आपको ये 2 एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे. So that is why it is must that you should know both figure of speech. Okay, one more sentence. Where the clear stream of reason has not lost its way. Can you guess what figure of speech is used here? Yes, it is metaphor. Why metaphor? What is metaphor? ऊपर के example में भी मैंने बताया metaphor is indirect comparison without using word like or as. तो यहाँ पे भी indirect comparison किया हुआ है. किसकी? Here reason has been indirectly compared with clear stream. Clear stream मैंने बताया logical thinking. तो उसको बताया गया है कि reason जो है, reason has been indirectly compared with clear stream. उसको, so this is figure of speech is metaphor. और एक example, into that heaven of freedom my father led my country awake. Okay, can you guess what figure of speech is this? It is synecdoche. Now what is synecdoche? This figure of speech is rarely used. तो इसके लिए आप शायद भूल गए होंगे. Synecdoche is when one word represents whole और whole represents one. एक word यूज किया है बहुत सारे को represent करने के लिए, तो तभी ये figure of speech उसको बोलते हैं synecdoche. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, बोल रहा है let my country awake. Country यानी here country के लोग, तो सभी कंट्री के लोगों के लिए एक वर्ड यूज किया गया है कंट्री. सो कंट्री स्टैंड्स फॉर द पीपल ऑफ कंट्री. वन वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग होल. दैट इज व्हाई फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज synecdoche. ओके गाइस, और एक बात आती है पोएम में, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम. व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ पोएम? ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट? एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ये जो आता है एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का आता है. एप्रिसिएशन ऑफ पोएम क्या होता है कि पोएम के बारे में आपको डिटेल में लिखना है. उसमें ये पॉइंट्स कवर अप करनी पड़ती हैं. नेम ऑफ पोएम, नेम ऑफ पोएट, राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम, फिगर ऑफ स्पीच व्हिच इज यूज्ड, थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, योर फेवरेट लाइन, स्पेशल फीचर्स यानी टाइप ऑफ पोएम, लैंग्वेज, टोन ऑफ द पोएम, व्हाट इज इंटरनल मीनिंग, एंड लास्ट में आपको लिखना पड़ता है व्हाई आई लाइक और डोंट लाइक द पोएम. ये पॉइंट्स आपको कवर अप करनी पड़ती है. एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको कवर अप करनी पड़ती है बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का. यू हैव टू राइट एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. तो जो पोएम दी होगी, अभी ये जो पॉइंट्स आपको पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है. वो कैसे लिखेंगे आप? देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम. द पोएम, पहले तो नाम लिखना पड़ेगा.
The poem Where the Mind is Without Fear, which is written by Rabindranath Tagore, is prayer to God. तो पहली लाइन में हमने क्या लिखा? Name of the poem, name of the poet. Tagore addresses God as my father and asks him to awaken his country into heaven of freedom, where it is full of good thoughts, good actions, good deeds. Now, पोएम किसके बारे में है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? वो लिखना है कि टैगोर ने बताया है, गॉड को एड्रेस किया है माय फादर, और अपने फादर को, गॉड को रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडिया को फ्रीडम दो, बट वो फ्रीडम वाले कंट्री में सब गुड थॉट्स, गुड एक्शंस, गुड डीड्स होने चाहिए. उसके बाद जो है हमको लिखना है राइमिंग स्कीम. बट अगर आप देखोगे तो ये पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स यानी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं यूज की हुई है उसमें पोएम में. जब भी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं यूज की हो जाती है, हुई होती है, तो हम लोग उसको लिखते हैं फ्री वर्स. तो ये पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं, यानी कि लास्ट जो लाइन के वर्ड्स होते हैं उनको देखना पड़ता है कि कौन से कैसे राइमिंग करिए. पर आप देखोगे कि एक भी लाइन में राइम नहीं हो रहा है लास्ट वर्ड, सो नो राइमिंग स्कीम इज यूज्ड. देयर आर मैनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड, बट वन सच इज पर्सोनिफिकेशन. अभी यहाँ पे बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच होंगी. अभी जैसे मैंने बताया कितनी सारे हर किसी सेंटेंस में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको उसमें से कोई भी एक लिखनी है जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच लिखो जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. अभी जैसे इधर मैंने लिखा है वन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज पर्सोनिफिकेशन, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन. और वो एक्सप्लेन करना है. हियर टायरलेस स्ट्राइविंग इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग इट्स आर्म्स. नेम ऑफ द पोएम लिखा, नेम ऑफ द पोएट लिखा, सेंट्रल आइडिया लिखा, राइमिंग स्कीम लिखा, फिगर ऑफ स्पीच लिखा. ओके, फिर लिखेंगे स्पेशल फीचर्स. स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पोएट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री. इट इज पैट्रियोटिक पोएम, देशभक्ति की पोएम है, और वो चाह रहा है कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, फ्री बने. माई फेवरेट लाइन इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई. कोई भी एक लाइन लिखनी है जो आपको अच्छी लग रही है. मैंने मेरी लाइन लिखी, आप अपनी लाइन लिखोगे जो भी आपकी फेवरेट लाइन है, जो आपको अच्छी लगी लाइन, और फिर बताना है क्यों आपको ये पसंद है ये लाइन. आई लाइक दिस लाइन बिकॉज पॉजिटिव इमोशंस आर शोन लाइक फियरलेसनेस, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. तो ये मेरा रीज़न है, इसकी वजह से मुझे लाइन पसंद आ रही है. तो जो भी आपको लाइन पसंद आ रही है उसका एक्सप्लेनेशन दोगे आपको क्यों पसंद है. लास्ट, आपको पोएम क्यों पसंद है. आई लाइक दिस पोएम बिकॉज आई एम पैट्रियोटिक. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इनकरेजिंग, दैट इज़ वाई आई लाइक दिस पोएम. अभी ऐसे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा एप्रिसिएशन ऑफ पोएम. 5 मार्क का है, तो सी टू इट दैट एटलीस्ट हाफ पेज आपका भरना चाहिए. हर किसी पोएम में फिगर ऑफ स्पीच, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 क्वेश्चन. तो आपको हर एक पोएम में अच्छे से स्टडी करना है, फिगर ऑफ स्पीच एंड एप्रिसिएशन ऑफ पोएम. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे.